Dear friends, today we are going to discuss some of the good MCQ on chapter of change in profit sharing ratio in a partnership topic from 12th CUT perspective. Like my previous video, you will also find these questions to be interesting and will make your concept much more clear. Let's start. A, B, C, D are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2:1. They change their ratio to 6:2:1:1. What's a gaining ratio? Point is this, what is the meaning of gaining ratio? Gaining ratio is ratio between the share gain by partners. मीन्स अगर दो पार्टनर ने कोई शेयर गेन करा है तो जिस रेशो में उन्होंने गेन करा है दैट्स गेनिंग रेशो. लेट्स सी व्हाट इट इज. Here the earlier share of the A is 4/10. Now it comes to 6/10. It means A has gained how much? 2/10. What about B? B earlier share is 3/10. Now it's 2/10. It means B has sec how much? 1/10. About C, C earlier share is 2/10. Now it's 1/10. It means C also sec by 1/10. And there is a no change in D. Since only A has gained, no other partner has gained, so there is not any gaining ratio. Gaining ratio तभी होगी जब दो पार्टनर गेन कर रहे हैं और जिस प्रोपोर्शन में वो गेन कर रहे हैं उनकी रेशो गेनिंग रेशो होगी. Hence the answer is there is no gaining ratio. Now comes to next question. A, B, C are partners sharing profit in the ratio of 2:1. They decided to change ratio as 8 मीन्स यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे ABCN रिजर्व मीन्स उन्होंने क्या बोला अगर टोटल करे 8 और 8 16 और 4 20 25 मीन्स वॉट एवर विल बी द प्रॉफिट 5/25 will be transferred to the reserve and the rest of the profit will be shared among the partners. Now if we see what was the earlier ratio 2:2:1 and what is the revised ratio between the partner, it's 8:8:4 which is 2:2:1 means among the partner none of the partner has gained and none of the partner has sacrificed. In the absence of this there will not be any adjustment for goodwill. Hence जो हमारे को यहाँ पे 2 लाख लिखा है गुडविल में, हम गुडविल की एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री कब करते हैं जब कोई पार्टनर या तो सेक्रीफाइस कर रहा हो या कोई पार्टनर गेन कर रहा हो. इस केस में किसी भी पार्टनर ने गेन नहीं करा और किसी पार्टनर ने भी सेक्रीफाइस नहीं करा. Hence on account of goodwill there will not be any entry. Now next term. A, B, C, D are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:1. A sacrificed 50% of his share, B gain 1/10, C gain 1/20 share. What's the gaining ratio? A ने यहाँ पे हमारा कितना सेक्रीफाइस करा? A का शेयर था 5/10. A sacrificed 50% means half. It means A sacrificed 5/20. Now what happened? B ने कितना गेन करा है? B ने गेन करा है 1/10. C ने गेन करा है 1/20. इट मीन्स व्हाट इज द रिमेनिंग. अगर यहाँ पे हम बोले B ने गेन करा है 2/20 1/20 तो यहाँ पे जो D ने गेन करा है इट विल बी 2/20 because whatever is sacrifice in I can say simple words total sec is always equals to total gain. Since A has sacrificed 5/20 the 5/20 has to be gain remaining partner. तो B ने 1/10 गेन करा है that's equal to 2/20. C ने 1/20 गेन करा है and this is the balancing figure. Hence the gaining ratio is 2:1 2:1:2. Next question. In case of change in profit sharing ratio no adjustment for goodwill is required. हम गुडविल की एडजस्टमेंट कब करते हैं? गुडविल है क्या चीज? गुडविल एक फ्यूचर का प्रॉफिट है. वो फ्यूचर का प्रॉफिट अराइज होगा बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स.
So they have done an efforts in specific profit sharing ratio. So any future का profit जो भी होगा उनको उस ratio में मिलना चाहिए. This is the concept behind adjustment for goodwill. Now if यहाँ पे ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल. मैं आपको आंसर बताता हूँ. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू. व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू जब आती है बेसिकली जब पार्टनर्स ने गुडविल की एंट्री ये पास कर दी है गुडविल टू ABC. जब पार्टनर ने फ्यूचर की गुडविल का जो बेनिफिट है उसका बेनिफिट ऑलरेडी रिसीव कर लिया बाय वर्च्यू ऑफ दिस एंट्री and the present value is equals to this book value, it means there is no requirement for adjustment for goodwill. Hence the answer is C. ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 2 to 1. Due to change in profit sharing ratio, C gained 50% of his share. It means C ने gain कितना करा है? C का earlier share कितना था? 1/5. C ने कितना gain करा है? 1/10. The goodwill is appearing in the books at 30,000. अगर goodwill books में appear हो रही होती है, we write off the goodwill in old ratio. तो हमने entry pass कर दी ABC to goodwill. How much? 30,000. old ratio में old ratio हमारी क्या है? 2 to 1. इसमें C का कितना आ गया? 1/5. C को हमने 6,000 रुपए से यहाँ पे डेबिट करेंगे. Now the present value of goodwill is 50,000. Since C is gaining how much? C is gaining 1/10 of share. तो accordingly what will happen? हम C को डेबिट करेंगे. How much? We will debit the amount of C with 1/10 of the present value of goodwill which is 5,000. तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है. तो टोटल जो हमारी डेबिट होना चाहिए सी को वो कितने से डेबिट होना चाहिए? 11. सो आंसर इज नॉट, द आंसर शुड बी, यहाँ पे टाइपो एरर हो गया, डेबिटेड बाय दी 11,000. तो आंसर इज 11,000. मैं दोबारा समझाता हूँ मैं आपको. गुडविल ऑलरेडी बुक में अपेयर हो रही है 30,000 रुपए की. क्वेश्चन कह रहा है गुडविल इज नॉट टू बी मेंटेन. इट मीन्स वी नीड टू राइट ऑफ द गुडविल. हम गुडविल को कितने से राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड रेशियो में. सी का शेयर कितना है यहाँ पे? सी का शेयर 1/5. तो 30,000 का 1/5 6,000 हो गया. हमने सी को 6,000 से डेबिट कर दिया. नाउ सिंस सी इज गेनिंग, तो जब पार्टनर गेन करता है हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट करते हैं. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है यहाँ पे? 50,000. तो सी को डेबिट कितने से होगा? 1/10 ऑफ 50, दैट कम्स टू 5,000. तो सी विल बी डेबिटेड विद द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 11,000. Next comes the next question. ABC are partners sharing profit losses in the ratio of 3 to 1. A sacrificed 1/3 of his share, out of which 30% was gifted to B and balance was sold to B and C in equal proportion. The value of goodwill is 90,000. How much will be credited to A on account of goodwill? मैं आपको एक चीज समझाता हूँ. गुडविल हम यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट करते हैं उसका वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इज one of the partner who is sacrificing is selling his share to the rest of the partner who are gaining. यहाँ पे A का शेयर कितना था? A ने टोटल सेक कितना करा? A ने सेक करा 3/6 into 1/3 which comes to टोटल सेक करा 1/6. इसका 30% उसने गिफ्ट कर दिया. उसने गिफ्ट कितना कर दिया? 30%. उसका अगेंस्ट उसे गुडविल का कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा. रिमेनिंग 70% ही सोल्ड टू ए एंड बी. इट मीन्स 70% अमाउंट कितना हो गया? 7/10. इट कम्स टू 7/60. तो गुडविल का जो उसको बेनिफिट मिलेगा इट विल बी 7/60 इंटू 90,000. ये इससे कटा, ये इससे कटा 11500, ये इससे कटा हमारा आपका 105. थोड़ी सी कैलकुलेशन में मैं रुक गया था. तो यहाँ पे ए ने अपना जो शेयर सोल्ड करा है बी एंड सी को वो 7/60 करा है. और 7/60 का गुडविल का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल का बेनिफिट हम ए को क्रेडिट करेंगे. हेंस जो ए को क्रेडिट करेंगे वो कितना करेंगे? 10,500.
ABC are partners sharing profit losses in the ratio of, ये सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है। तो इसको हम नहीं करते। नेक्स्ट कम दी 8th क्वेश्चन, ABC are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. They decided to change ratio ABC and reserve 45, 27, 18, 10. The journal reserve appearing in the books is 90,000 and it is decided to maintain the same in the books. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो और क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। What it means, the partner who has sacrificed has to be credited and the partners who have gained has to be debited. अब अगेन व्हाट्स द चेंज इन रेशियो, जितना टोटल हम करते कितना हुआ 45, ये हो गया 45, 45, 45, 90 और 10, 100 मीन्स अब जितना भी दे विल अर्न द प्रॉफिट उसका 10/100 will go to the reserve and the rest will be distributed to the partners. Now among the partners what is the ratio? 45, 27, 18. अगर हम इसको फर्दर ड्रिल डाउन लोअर लेवल पे लेके आए, दिस 9 अपन इसको काटते हैं, इसको 9 से काटते हैं, 9, 5, 9, 3, 2. It means among the partners none of the partner has sacrificed, none of the partner has gained. क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्होंने शेयर सेक्रीफाइस करा है टोटल में अगर हम बात करें, it's going to the reserve, it's not going to the any of the partner. When none of the partner has gained, none of the partner has sacrificed, there will not be any adjustment entry for journal reserve appearing in our books. Hence the answer is net. ABC are partners sharing profit in the ratio of 3:1, decided to share profit loss equally. The workman compensation is appearing in the books at 40,000. A took over the unrecorded liability of workman compensation of 10,000. By how much amount A account will be credited? जब भी हम यहाँ पे रेशो चेंज होती है तो हम रिजर्व्स का क्या करते हैं, जितनी लाइबिलिटी होती है उतनी लाइबिलिटी वी ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व टू द लाइबिलिटी अकाउंट एंड द रेस्ट ऑफ द रिजर्व वी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन अ ऑल रेशो। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि वी नीड नॉट टू मेंटेन द वी नीड टू मेंटेन द रिजर्व। अगर हम यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाए तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट 40,000. Now liability is being taken over by A. तो यहाँ पे जो 10,000 की लाइबिलिटी है वो A को क्रेडिट कर देंगे। रिमेनिंग कितना बचा रिजर्व 30,000, वो हम A और C में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रेशो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में 3:1। तो कितना हो गया 30,000 को डिवाइड करा 6 से डिवाइड करा, कॉमन फैक्टर 5। तो कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ गया, अगर हम 30,000 को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो कॉमन फैक्टर आ गया 5। तो इसमें A का शेयर हो गया हमारा 15,000। A को क्रेडिट कितने से करेंगे 15,000, रिमेनिंग पार्टनर को 10,000 एंड 5,000। thus हम इस ट्रांजेक्शन में जो टोटल अमाउंट A को क्रेडिट करेंगे इट्स 25, hence the answer is C. ABC are partners sharing profit in the ratio of 2:1, decided to share future profit loss in the ratio of 5:3. Workman compensation is appearing in the books at 40,000 and liability for workman claim appearing in the books. This is an important point. मेरी books में liability already appear हो रही है. This is not an unrecorded liability to be created out of workman compensation reserve. तो यहाँ पे liability already 10,000 appear हो रही है. Now what will be the effect on B account due to change in PSR? अब यहाँ पे क्वेश्चन अगेन इज नॉट सेइंग वी हैव टू मेंटेन WCR, इट मींस मुझे पूरा WCR डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ए का इसमें शेयर कितना है 40,000, सॉरी बी का शेयर कितना है 2/5, ये हमने काटा 8,000, 16,000, इट मींस हम यहाँ पे बी को 16,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. A sacrifices half of his share, which is taken by B and C in the ratio of 3:2. At the time of change in ratio, the firm has a debit balance of 30,000 in a P&L. It is decided to maintain the same in books. By how much amount B account will be affected due to change in ratio? यहाँ पे क्या करा है, ए ने सेक्रीफाइस करा है. ए ने सेक्रीफाइस कितना करा है, हाफ ऑफ हिज शेयर. ए का शेयर कितना था, 2/4. ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है यहाँ पे, 1/4. इसको गेन करा है किन्होंने, इसको गेन करा है बी और सी ने. किस रेशो में, 3:2 में. तो एक बी का गेन कितना आ गया, 1/4 इंटू 3/5. इट कम्स टू 3/20. सी का गेन कितना आ गया, 1/4 इंटू 2/5. इट कम्स टू 2/20. अब यहाँ पे सी ने गेन करा है, बट देर इज अ क्वेश्चन सेज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मीन्स देर इज अ लॉस. और क्वेश्चन कह रहा है दिस लॉस अकाउंट हैज टू बी मेंटेन. इन टाइप में व्हाट वी डू, वी डेबिट दी सेक पार्टनर एंड क्रेडिट दी गेन पार्टनर. क्योंकि यहाँ प्रॉफिट नहीं है, लॉस है. अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो हमारी जो एंट्री बनती है वो हमेशा गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बनती है. यहाँ पे क्योंकि लॉस है तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी सेक पार्टनर्स टू गेन पार्टनर्स. अब बी ने कितना गेन करा है, 3/20. तो हम बी को कितने से क्रेडिट करेंगे, 30,000 इंटू 3/20. ये हमने इससे काटा, ये हमारा कितना आ गया, 1500. ये हमारा आ गया 4500. तो आंसर इज बी विल बी क्रेडिटेड विथ 4500. दिस टाइम आई हैव जस्ट कम अप विद द सम ऑफ द क्वेश्चंस. Next video I will cover the more question on change in profit sharing ratio, which will further provide the clarity to my dear students. Hope you will like these questions, and for any query you are most welcome.